So we can start now, and we will begin with whatever we covered yesterday, and today whatever is small part left of that, and then we will move to another important technique in the acting, Stella Adler, as you suggested. So we can start with, we already have the 10 people, so we can begin with that. Okay. So as announced yesterday, those people who believe in showing their faces, I suppose all actors would like to show their faces at least someday or other. So why don't you start now? So switch on your videos. Otherwise, be underground actor. We have underground cinema, which not many people knows about it. So if you don't want to be underground actor, kindly start showing your faces now. Okay. So Exactly. Okay. Hi everyone. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? All good, ma'am. All good. Okay. तो कल हमने लास्ट जो बात किया था कि how Brecht wanted to treat his audiences. All right. How Brecht wanted that the audience should not just swim across the emotions, emotional vibrations, the play or the performances trying to disseminate, but rather think about it, see it as a matter of fact, and think whether how one should perceive it. Okay. Now, another very important factor of how Brecht wanted its audience, its spectators rather, to see the performance is the familiar, to make the familiar strange. ठीक है, इतना सारा जो हमने टेक्निक तरीका, किस तरीके से continuously breaking that flow, ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट लाना, फ्रेगमेंटेशंस में परफॉर्मेंसेस करना, इसका एक मोटिव, बहुत बड़ा मोटिव ये है कि whatever familiar we see, it should seem strange to you. ठीक है, why is it not strange to, I mean, if being a woman, for me it is a very common thing that I'll step out on the roads and there would be some hooligans who would be staring at me, who would pass comments. All right, these are very common things we go through, especially in India. All right, you have also seen such things, maybe. I hope no one has been Some a part of them have done it. Huh. Now this is such a common thing, we are laughing about it, but this is isn't it a strange thing that there is some person, you're not even thinking how the person would feel when you pass comments, when you do eve teasing. All right, this is just an example, just so that you understand what I'm trying to say. ठीक है, तो randomly रास्ते में हम हर रोज बहुत सारी घटनाएं देखते हैं होते हुए, and then we overlook it because it is highly normalized in our mind. बहुत normalize हो गया है हमारे दिमाग में, तो उसी normalization को तोड़ना और उसको strange, is it not strange that another person besides me, अब मेरे ही बाजू में एक और जो इंसान खड़े हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक लार्जर, जिसका रीजन एक पर्सनल रीजन नहीं है, एक लार्जर रीजन है, and it is highly accepted, it is highly normalized. No, don't see it as a very normalized thing. It should be strange to you. मैं कंफर्ट में हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है? ठीक है, तो थिंग्स शुड बी स्ट्रेंज, फेमिलियर चीजें, हमने हर रोज ये सारी चीजें हम देखते हैं सामने, हाँ एक भिखारी पड़ा हुआ है, फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड वी ओवरलुक इट. सो दीज आर वेरी फेमिलियर थिंग्स. इन्हीं सारे फेमिलियर चीजों को, फेमिलियर घटनाएं जो हमारे चारों तरफ है, उसको स्टेज में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना दैट it appears to be strange. And how to make it look strange? By presenting it in a strange way. ठीक है, that is one of the very important things to be noted.
ऑल राइट, तो ये तो हो गया कि कैसे ब्रेख्ट चाहता था कि उसकी ऑडियंस और रादर उसके स्पेक्टेटर्स उसके काम को देखें. ठीक है. Now, let's just discuss some notable work of Brecht. कुछ notable जो plays है वो क्या. Am I audible? Yeah. Again, there is a power cut. No I problem. think this is a like fixed pattern है इस समय का कि इस वक्त जाएगा ही जाएगा. Anyways, I'm very sorry for that. No problem. Carry on. तो इस वजह से मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है. ठीक. All right, some notable work of Brecht. क्या है वो? First of all, Mother Courage and Her Children. ये लिखा गया था 1939 में और ये क्या कहता है? What is the theme of this play? The theme of this play is the devastating effects of a European war and the blindness of anyone hoping to profit by it. ये चलिए, ये तो एक वॉर की बात हो गई कि इस प्ले में एक वॉर का सिचुएशन है और वो तमाम लोग जो इस वॉर से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उन लोगों के. ठीक है. नाउ इफ वी हैव टू रिलेट दिस थिंग टू कंटेम्पररी सिनेरियो, व्हाट कैन इट बी? मेरे दिमाग में तो अभी कोविड का सिनेरियो ही आ रहा है बिकॉज इवन नाउ वी आर गोइंग थ्रू दैट. सो कोविड के सिनेरियो में भी हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक में जो दवाइयां हैं उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन हियर एंड देन there are some people who are trying to gain a profit out of it. So that is how you can relate to the theme of mother courage. It is relevant even today. ठीक है. ये जो थीम है ये बस ये प्ले उस टाइम पे लिखा गया था जब यूरोपियन एक वॉर चल रहा था. ये अभी रेलिवेंट नहीं है ऐसा नहीं है. ठीक है. तो ये चीजें हम अभी भी देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द गुड पीपल ऑफ शिजवान. दिस इज अनदर प्ले. ये 1943 में लिखा गया था. This play questions economic system of society and the impact they have on individual morality. Ma'am, can you ये जो repeat the name, please? I'm so sorry to yes, interrupt. yes, sure. The Good good Woman of people. Shizwan. Yesterday I shown the poster of that particular play also. Yeah. It is there in the PPT actually. उसमें ये पूरा है. ये सारे नाम जितने भी हैं ये PPT में मिल जाएंगे आपको. So the name is The Good People. कहीं किसी जगह पे Good Woman of Shizwan लिखा हुआ है, Good Person of Shizwan लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये 1943 में लिखा गया था एंड इट टॉक्स अबाउट कैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम एक इंसान के मॉरलिटी को इम्पैक्ट करता है. ऑलराइट. द नेक्स्ट प्ले वुड बी द कॉकेशियन चॉक सर्कल. कॉकेशियन चॉक सर्कल ये लिखा गया था 1948 में. Now in this play it is about a peasant girl who rescues a baby and becomes a better mother than the wealthy natural parents. All right, that is the theme of this play, Caucasian Chalk Circle. Then there is this, The Irresistible Rise of Arturo Ui. This play is is a very interesting one because इसमें जो आर्तुरो उई का जो कैरेक्टर है ना ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है हिटलर से. All right. So what is this play about? So this was written in 1930. Yes, 1930s में ये लिखा गया था. Chicago mobster and his attempts to control the cauliflower racket by ruthlessly disposing of the opposition. The play is a satirical allegory of the rise of Adolf Hitler and the Nazi Party in Germany prior to World War II. All right.
सो ये है इस प्ले का थीम। ये सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, जो पीपीटी कल था उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ तो ये तो थे कुछ प्लेस, ब्रेख्त के बहुत सारे प्लेस हैं, उनमें से ये कुछ ही नाम हैं। एक सेकंड, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द लाइट। Now, Brecht in the later years, what happened? He escaped Germany क्योंकि he escaped जर्मनी से वो भाग के वो कुछ समय के लिए डेनमार्क में रहे, और डेनमार्क में रहने के बाद फिर he went to America to work for Hollywood because of course he has to do something. Lived as a script writer in Hollywood in 1940s. 1940s में वो as a script writer वो हॉलीवुड में रहे, ठीक है। उनके जो दो सबसे इम्पोर्टेंट काम है एज अ स्क्रिप्ट राइटर इन फिल्म्स आर कूलर वोम्पला एंड हंगमन ऑल्सो डाई। ये दोनों उनके बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है जहाँ पे उन्होंने एज अ स्क्रीन प्ले राइटर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से उन्होंने काम किया। ये दोनों फिल्म आप देख सकते हैं, कूलर वोम्पला एंड Hangman also die। ये जो Hangman also die है ये एक रियल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। हिटलर के टाइम पे there was an officer who was the main brain behind the treatment which was given in the concentration camps of Auschwitz, ठीक है। सो ये जो फिल्म है हैंगमैन ऑल्सो डाई, ये उस चीज पे है, उस पे है, ठीक है। In 14th August 1956, Brecht died of an heart attack, and he was 58 years old at that time. Brecht, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सोचने के लिए कि Brecht requested that he should be buried in a lead-lined coffin with a stiletto heel through his heart। ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा कॉफिन जो है ना वो लीड एक धातु होता है शायद, तो उससे वो उसका लाइन उससे उसके बाउंड्रीज बनाए जाए, और उनका जो बॉडी है उसके हार्ट में एक बड़ा हील वाला स्टेलेटो एकदम गुथा हुआ हो। नाउ व्हाई वाज इट सो, यू थिंक, आप खुद ही सोच के इसका इंटरप्रिटेशन निकालिए अपना अपना, ठीक है। नाउ ऑल इन ऑल अगर थोड़ा ओवरऑल थोड़ा हमने क्या समझा कि व्हाट ब्रेख्त मैनेज्ड to do with his work is managed to transform theater from pure entertainment, एक प्योर एंटरटेनमेंट वाले फॉर्म से पूरा रिफॉर्म उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि इससे भी ऊपर के पर्पसेस के लिए थिएटर यूज हो सकते हैं, ताकि हम जो देखने वाले हैं उनमें भी थोड़ा कुछ चेंजेस ला सके, कुछ एक सवाल उनके मन में छोड़ सके जिसको वो घर लेके जा सके, ठीक है। सो लाइक दैट, एंड अ टूल फॉर लुकिंग एट द बिग इश्यूज दैट इफेक्ट अस ऑल। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, हम कई बार हम ये सोचते हैं हाँ इसमें मेरा क्या है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो इसमें मेरा क्या जाता है, मेरे जगह पे तो नहीं हो रहा है। बट you never know what if it is a political issue, if it is a social issue, you can't always turn blind towards them just because they are not directly affecting you. You never know कि वो सारी चीजें आपके साथ कब होने लग जाए। All right, that is one thing. Theater can make a difference. ये उनका अल्टीमेट जो स्टेटमेंट वो अपने पूरे काम के थ्रू ये स्टेटमेंट वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि थिएटर कैन मेक डिफरेंस। हमने इंडियन प्लेज में भी इंडियन कुछ ऐसे प्लेज हो चुके हैं जो जिन्होंने ऑडियंसेस को हिला के रख दिया था, और जिनके वजह से कुछ लॉज भी लागू हुए, कुछ
चीजें बहुत एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्सपोजर मिला उन 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 प्लेस के थ्रू। जैसे कि एक द्रौपदी करके प्ले है, द नेम ऑफ द प्ले इज द्रौपदी, एंड this was once directed by Heshnam Kanhailal. Heshnam Kanhailal is one of the very celebrated theatre directors of Manipur. तो मणिपुर में जो there has been a lot of news about how the women there have Those who been. don't know, he is the one of the rare people in theatre who got the Padam Bhushan. Every Tom, Dick and Harry do not get the Padam Bhushan in theatre. People could reach up to Padam Shri and then back up. He is one of those rare people. हाँ, so the women of Manipur, उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला था क्योंकि एक मणिपुर की एक लड़की का गैंग रेप हुआ था, which was done by the Indian Army, some officials of the Indian Army. All right, तो उस चीज के प्रोटेस्ट में एक नेकेड रैली, और फिर उससे और उसी का एक पार्ट है कि द्रौपदी जो प्ले था उसको उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि देखने वालों को हिला के रख दिया। ठीक है, पद्म भूषण पाने के पीछे उनके ऐसे ऐसे काम हैं। तो yeah, he's so that kind of theater, it really created a jerk in the minds of the audiences. All right, so of course theater can make a difference, provide it depends upon the director, it depends upon the theater artist कि वो किस तरीके से इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, हम ये अलग अलग चीजें क्यों पढ़ते हैं एक्टिंग में, थिएटर में, ये सब हम अलग अलग चीजें क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम जब सारी चीजें जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एज एन एक्टर, मुझे एज एन आर्टिस्ट क्या चाहिए। That's why it is important to know all these things. All right, so here we come to an end for Brecht. Now let's move on to Stella Adler. For Stella Adler, I would be referring to the ये जो PPT है, I would be referring to that. Just give me a moment. Yeah, sure. और उसके साथ ही मैं एक लिंक मैंने शेयर किया है एक प्ले का, जो कि एक ब्रेख्टियन प्ले है। तो हमने जितना जो भी पढ़ा उसका एग्जीक्यूशन कैसा दिखता है, यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट प्ले। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, यू कैन वॉच इट। ओके, so a brief history. Stella Adler is one of the celebrated teachers, rather acting masters in the world. उनके ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो बहुत वाइडली यूज होते हैं, वाइडली उनको समझा जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑलराइट, नाउ born in 1901, Stella Adler was raised in a family of Jewish American actors. उनके फादर भी एक बहुत बड़े एक्टर थे, थिएटर एक्टर थे। उन्होंने बहुत सारे उस जमाने के, उनका ये था कि उनके फादर को जब पहली बार ये मौका मिला था, मौका तो नहीं, खैर वो तो ऑलरेडी बहुत नामी थे, बट अ थिएटर कंपनी फ्रॉम अमेरिका wanted to cast him in their play and he said no. Why he said no? Because there is a problem with the language. Then again the whole theater company said कि कोई बात नहीं, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश में बात कर लेंगे, लेकिन आप अपने Am I audible? Yeah, carry on. Okay. So then तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने भाषा में ही करिए एंड यू विल बी प्लेइंग द लीड रोल, बाकी जो कैरेक्टर्स है वो सारे इंग्लिश में बात करें। इवन देन ही सेड नो। ठीक है, देन some smart person said कि you owe it to the people, you are a Jewish actor, Jews have gone through a lot,
सो ये you owe it to the audiences of your kind. तो तब उन्होंने इंग्लिश थिएटर में काम करना शुरू किया। और क्योंकि उनके फैमिली में बाकी और भी लोग थे जो एक्टिंग करते थे, तो जब स्टेला एडलर तब सिर्फ 3 साल की थी, तो उनको उनके पापा ने एक मौका दिया कि चलो आप हमारे इस प्ले में एक छोटा सा कैरेक्टर करो। वो उन्होंने इतने प्यारे तरीके से किया, तो उनका तभी से शुरू हुआ, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। ओके, देन she made her Broadway debut in 1922 playing the butterfly in The World We Live In. एक प्ले है The World We Live In, उसमें एक बटरफ्लाई का कैरेक्टर उन्होंने किया था। That same year, Konstantin Stanislavski made his only US tour, which Adler went to see. Okay. Stella Adler उस स्टैनिस्लावस्की के बारे में क्या सर, क्या इन लोगों को स्टैनिस्लावस्की का कुछ क्लास करवा दिया गया पूरा का पूरा, और अच्छा, जो है त्रिपाठी शर्मा जी ने 2 दिन का क्लास लिया था इनका। ओके ओके, ठीक है। तो स्टैनिस्लावस्की उस टाइम पे एक ऐसे नाम थे कि जो लोग एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे थे, फॉर देम इट वाज अ वेरी हैपनिंग नेम। ऑलराइट, तो स्टेला एडलर ने जब सुना कि वो आ रहे हैं, तो शी वेंट टू मीट हिम। एंड वो जो स्टैनिस्लावस्की का जो प्ले था, उस प्ले ने स्टेला एडलर के दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट किया। सो दिस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन Adler's career and her view of the acting method. Adler went on to be very successful, founding a school of acting in New York and Los Angeles, where she taught pupils such as Marlon Brando, Judy Garland, Elizabeth Taylor, and Robert De Niro. ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमने बहुत सुने, और ये सारे स्टेला एडलर के ही स्टूडेंट्स रह चुके हैं। All right, then can we go to the next slide? Okay. Here it is. Yeah. Okay. Now, how things were between Adler and Stanislavski. Adler joined the American Laboratory Theatre in 1925. Here, she was introduced to Stanislavski's theories. उस समय में क्या था कि एक्टिंग या एक परफॉर्मेंस, एक स्टेज परफॉर्मेंस को एक सिस्टमेटिकली कैसे आप एक कैरेक्टर में जाते हो, उसका जो एक पूरा प्रोसेस है, उसका एक होमवर्क है। एक एक्टर का बहुत सारा काम होता है बिफोर द एक्टर इज रेडी फॉर अ परफॉर्मेंस टू गो इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। उससे पहले इतना सारा काम, इतना सारा होमवर्क, इतना सारा प्रेपरेशन, इन सारे चीजों का इस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कुछ नहीं था। हाँ, आप लाइंस याद करो, परफॉर्म करो, थोड़ा सा मेलोड्रामा करो, तो इट वाज वेरी मैकेनिकल। ऑलराइट, मैकेनिकल, और रादर देयर वाज नो ट्रुथ। कहीं ना कहीं देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रुथ इन इट। स्टैनिस्लावस्की सिस्टम में क्या है, स्टैनिस्लावस्की constantly talk about the psychological truth. All right, now Stanislavski's main point was using truth in acting to develop the humanity within one's character. All right, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कैरेक्टर को कोई और किसी और का लिखा हुआ है, बस मुझे प्ले करना है, नहीं, उस कैरेक्टर को अपने आप में ढालना है और उस कैरेक्टर को सच में बदलना है। ठीक है, सच्चाई में बदलना है उस कैरेक्टर को। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टैनिस्लावस्की का। विथ हिज इन्फ्लुएंस, मेथड एक्टिंग वाज टेकिंग personal experiences and drawing on emotions to build a cognitive understanding of their role. So this is all about Stanislavski. ये थोड़ा सा रेफरेंस देना जरूरी है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेला एडलर क्या कह रही है। There are some differences, all right. Like Stella Adler is absolutely against the idea of method acting. Why? We will study it further. The next slide, please.
Okay, growth as an actor and as a human being is synonymous. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कई बार क्या होता है, मुझे कुछ इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या ये जरूरी है कि हम एक इंसान के रूप में भी अच्छे हों? बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकली और उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, हम एक इतने डिफिकल्ट टाइम में अभी जी रहे हैं जब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑल गो थ्रू। ठीक है, इतना सारा कुछ हो जाने के बाद एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे या फिर एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग के तौर पे खुद को मेंटेन करके रखना इज अ बिग टास्क। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, नाउ growth as an actor is and as a human being is synonymous. How? आपके लाइफ में नसीरुद्दीन शाह एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अब 20 साल के हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, एक्टर थोड़ी बन पाओगे उस टाइम पे। 40 के ऊपर आप हो जाओ तब जाके सही मायने पे एक्टर बन पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कुछ बहुत ही मेच्योर चीजें जो शायद मैं जब बहुत कम उम्र की थी तब मुझे समझ नहीं आती थी, आज मुझे समझ आती है वो चीजें। ऑलराइट, कुछ ऐसे इमोशंस जो उस टाइम पे मैंने उतना ज्यादा वो उन चीजों ने मुझे नहीं छुआ था, लेकिन अब वो चीजें छू जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस, कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स जो उस समय पे समझ नहीं आती थी, आज समझ आती है। आज भी ऐसे बहुत सारे हैं जो नहीं समझ आते हैं, जो बाद में समझ आएंगे शायद। तो as a human being we keep on growing, our understanding of the human emotion, human feeling keeps on growing because we keep on going through a lot, we see a lot of people around us, है ना? ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप ज्यादा से ज्यादा इमोशंस को समझेंगे विथ योर एक्सपीरियंस, ठीक उसी तरीके से एज एन एक्टर आप ग्रो करेंगे बिकॉज यू विल बी मेच्योर्ड इन योर वर्क। आपका जो भी एक्ट होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगा, उसमें एक मेच्योरिटी आएगी। ऐसे हम बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, आई थिंक हम हम ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस रिकॉल कर सकते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल तरीके से किया लेकिन छू गया, कहीं ना कहीं छू गया। देयर इज सो मच ऑफ मेच्योरिटी इन दैट परफॉर्मेंस। दैट मेच्योरिटी genuinely comes in an actor or in the character when as a human being आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हुई हो, ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके हुए। सो इन दैट वे ग्रोथ एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग इज सिनोनिमस। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद ये कोई सवाल भी अगर आ जाए तो मे बी you would be able to elaborate on this. To Stella Adler, the impulse to act was a scared was a sacred and important one, but she was not dogmatic about any singular approach or method. All right, ये जो impulse है हमारा, of course ये impulsively जब जब हम कोई एक्ट करते हैं, एक चीज है कि लाइफ में इम्पल्स उतना ज्यादा हेल्पफुल हमेशा नहीं होता है, बट ऑन स्टेज दैट इम्पल्स इट प्लेज मैजिक ऑन स्टेज। ठीक है, इसी वजह से उस इम्पल्स को कि आपको ये एक्शन कर रहे हो, वो इम्पल्सिव लग रहा है, वो इम्पल्स से आप कर रहे हैं, उसका एक वो बहुत ही पवित्र होता है वो परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है। बट हाँ, यही एक तरीका है ऐसा नहीं है। This is one of the approaches. All right. Rather, her system centered on providing budding actors with the tools, training, and discipline to grow and to employ the limitless human imagination in their task of studying and bringing a script to life. ठीक है, उनका जो सिस्टम था, उनकी जो आइडियोलॉजी या बिलीफ सिस्टम था कि एक एक्टर किस तरीके से ग्रो कर सकता है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा।
जैसे कि एक इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक उसी तरीके से एक एक्टर भी एक्सपीरियंस के थ्रू आप छोटे से छोटे काम से शुरू करते हो, एंड देन धीरे 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 वो छोटे काम से आप उससे थोड़ा बड़ा काम, उससे और थोड़ा बड़ा काम, और इसी तरीके से आप और एज एन एक्टर ग्रो करते हो, ये उनका कहना था। आजकल तो ये हो गया है कि we all don't have time so we want things to be faster, so सही तरीका तो यही है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ताकि आप सच्चे तौर पे आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें एक जेन्युइन एफर्ट और वो जो इम्पैक्ट होना है उस तरीके से, उसका प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस ये है। बट अगेन, क्योंकि आजकल समय कम है, दैट्स व्हाई वी गो टू एन इंस्टीट्यूशन, पे फॉर इट एंड वी जस्ट लर्न व्हाट जो टू द पॉइंट चीजें हम सीखते हैं वो। ऑलराइट, so that's what it is। हाँ, और and to ये जो ये जो इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है, स्टेला एडलर कॉन्स्टेंटली एम्फसाइजेस ऑन ह्यूमन इमेजिनेशन। हमारे जो इमेजिनेशन कैपेसिटीज हैं वो लिमिटलेस है, वो जस्ट लिमिटलेस है। तो उस चीज को वो काम में लगाने की बार बार बात करती है, ठीक है। और इमेजिनेशन को जस्ट ऑल हेवायर थॉट्स के रूप में ना लेके एक डिसिप्लिन में बांध के, एक सिस्टम में बांध के, इमेजिनेशन को आप किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हो टू ब्रिंग आउट अ कैरेक्टर इफेक्टिवली। ऑलराइट, दैट इज द होल सिस्टम अबाउट। ऑलराइट, द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड ही है? नहीं नहीं, नेक्स्ट वाला है। Sorry. Yeah. हाँ, the development of independent actors. At the studio, the aim is to develop actors who think for themselves, ठीक है, respect their own ideas and ideals, and use the theater as a means to share those ideas and ideals. Such independent actors are fully resolved to train their minds, bodies, voices, and spirits to achieve that end. एक यहाँ पे अगर हम 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, हम 15 लोगों के दिमाग 15 तरीके से चलते हैं, ठीक है। वी ऑल हैव आवर एक्सपीरियंसेस, वी ऑल हैव आवर ओन आइडियाज एंड आइडियल्स, कि मुझे ये पसंद है और इसलिए पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है और इसलिए नहीं पसंद है। ये एक एक इंडिपेंडेंट एक्टर को फॉर्म करता है, ठीक है। Independent actors are fully resolved to train their minds। जहां आपके पास अपने आइडियाज है और अपने आइडियल्स है, आपका अपना एक सोच है, जहां आपका एक सोच है अपना, वहां पे आप पूरी तरीके से केपेबल हैं कि आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने वॉइस को और अपनी आत्मा को उस तरीके से ट्रेन कर सको, रिजॉल्व कर सको, और उसको और फर्दर डेवलप, कहना आई डोंट नो, बट एक्सपैंड कर सको। आपका जो ये सेल्फ है उसको और एक्सपैंड करना। हाउ डू यू एक्सपैंड योर सेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, एंड देन आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो सुनने वाला सुन रहा है, समझ रहा है, तो ऑलरेडी यू आर व्हाट योर थॉट्स आर। ऑलराइट, सो उस तरीके से आप अपने सेल्फ को भी एक्सपैंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The power of imagination. Now, as we already spoke, Stella Adler highly advocates imagination. वो ये कहती है कि actors' imaginations are the most powerful source for them to draw on. Okay, कहाँ डिफरेंस आता है, ये अगर थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है।
जब हम मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ये कंपैरिजन, क्योंकि स्टेला एडलर डायरेक्टली वो क्रिटिसाइज करती थी मेथड एक्टिंग को, कि मेथड एक्टिंग में क्या है, आप यू आर एन इंडिविजुअल और आप ही बन के वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो जो कि आपका कैरेक्टर जीता है जिन सारी चीजों को. ऑलराइट, then where is the imagination here? You are creating it for real. All right, you're creating it for real. And where is the acting then? ये तो एक्टिंग करना है ना, हमें एक्ट करना है, जो नहीं है उसको कन्विक्शन के साथ करना है. तो अगर हम सच में ही वो करने लगे, एक्चुअल में वो करने लगे, then where is my capacity to imagine? Where is my capacity to enact if I really have to do it? All right, so she advocated the power of imagination, क्योंकि as I already said, imagination is a limitless source of thoughts. To bring theatrical texts to life, the actor must be able to create a transforming living experience. ठीक है, एक उनका ये वो हमेशा एक चीज कहती थी कि जो राइटर ने लिखा है, चलो वो तो उसने वर्ड्स लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, लेकिन उन शब्दों को लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्म करना लाइफ में, ये एक एक्टर का काम है. उन शब्दों को जीवन एक्टर देता है. तो इन दैट वे, नाउ किस तरीके से आप उन शब्दों को यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दोज वर्ड्स टू लाइफ through your imagination, because whatever is written, it is ultimately, it is not about you, it is not your story. ठीक है, आप सिर्फ 99.9% ही रहते हो. आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है वो सिर्फ 99% है. सॉरी, वो 99% आप नहीं हो. मैं उल्टा बोल रही थी, आई एम सो सॉरी. 99% ये आपके बारे में नहीं है, आप नहीं हो, सिर्फ 1% आप हो. ठीक है, वो बाकी 99% क्या है? बाकी 99% आपका इमेजिनेशन है. दिस इज about when you are playing a character which is written by an author. ठीक है, तो उन शब्दों को जिंदगी देना एक एक्टर का काम है. To create such an experience, students at the Stella Adler studio are asked to use their imagination to locate the fullest range of motivational force rather than depending solely on their personal past and emotional memory. आपने स्टैनिस्लाव्स्की सिस्टम में इमोशनल मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि मेरे पास्ट में कुछ एक घटा था और उसको मुझे याद रखना है. वो जो फीलिंग मेरे में थी उसको मुझे याद रखना है, और अभी जो सीन मैं कर रही हूँ इसको रिलेट करना है मेरे किसी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, सो दैट उस एक्सपीरियंस को मैं याद करके इस सीन को मैं बिल्कुल अपने जैसा, ये मेरे ही बारे में है, अपने जैसा मैं परफॉर्म कर सकूं. स्टेला एडलर वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस आइडिया, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे आपका इमेजिनेशन क्या है, कहाँ है आपका इमेजिनेशन? ये तो आपका हुआ था एक टाइम पे, वो बस आप रिक्रिएट कर रहे हो, वो आप बोरो कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस को. यहाँ पे आपकी कैपेसिटी क्या है एज एन एक्टर? ऑलराइट, सो या, by not depending upon your own experiences, try to imagine and bring that to life. हाँ, और उस चीज को, उस imagination को लाइफ में लाने के लिए what all motivations you need. There are a lot of research which you need to do. There is a character, उस कैरेक्टर का कुछ बैकग्राउंड होगा, ठीक है, उस कैरेक्टर की कुछ बैक स्टोरीज होंगी. ऐसे बहुत सारे स्टेला एडलर टेक्निक के बहुत सारे एक्सरसाइजेस है. कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे भी जो हम कभी कभी किया करते थे, कि मान लीजिए कि मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड देयर इज अनदर को एक्टर, वो भी कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को रैंडम कुछ ऐसे सवाल करते हैं which is not a part of the play. वहां पे शायद उसका उल्लेख नहीं है, उस प्ले में, उस कहानी में उसका उल्लेख नहीं है,
लेकिन फिर भी हम पूछते हैं सो दैट आप अपने कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी क्रिएट कर सको। आपके कैरेक्टर के पिता और माता और पिता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है प्ले में, उसका कोई उतना इम्पोर्टेंस है भी नहीं उसको मेंशन करना, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि आपके कैरेक्टर का के पिता का नाम क्या है, ठीक है, अच्छा आपके पिता क्या करते थे, ओके, अच्छा आपका जो कैरेक्टर है वो बचपन में कैसा था, क्या वो स्कूल गया था, कौन से स्कूल में गया था, उस स्कूल में वो उसने किस भाषा में बात की, किस भाषा में पढ़ाई की, ठीक है, वहां पे क्या उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था लेकिन अभी है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है। तो इस तरीके के सवाल, ये जो बैक स्टोरी है, ये सारे मोटिवेशंस है आपके, कि आपका इमेजिनेशन जो है उसको कोई आधार मिले, किस आधार पे आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो उसका कोई सॉलिड बैकग्राउंड है कि नहीं। Now these kind of exercises are very important when you are trying to achieve a character through the Stella Adler techniques, ठीक है। उसके अलावा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन। एक तो होता है कि हम अपने इमोशनल मेमोरीज को बोरो करते हैं कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए। नाउ देन देयर इज अनदर थिंग कि जहां आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मेरा अपना एक कैरेक्टर है, चलो मैं अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जब मैं कैरेक्टर को बनाती हूँ, ठीक है, बट आई स्टिल इवन देन आई हैव अ लिमिट, आई माइट हैव अ पैटर्न of doing it. The moment you start observing around you, ऑब्जर्वेशन से आपका ये जो इमेजिनेशन का जो पिटारा है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच यू कैन पुट अराउंड, ठीक है। That's why imagination is very important. There is one person who is doing something and आपने वो काम कभी नहीं, कोई घास काटने वाला है, आपने कभी घास नहीं काटा, लेकिन वो सामने वाला आदमी घास काट रहा है, लास्ट 1 घंटे से घास काट रहा है। what is his body language, what is he going through, कितने ब्रेक्स लिए उसने, बीच में इतने धूप में वो कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। तो एक एक चीज कितना ज्यादा से ज्यादा आप इमेजिन, जितना आप इमेजिन कर सको करो, सॉरी ऑब्जर्वेशन कर सको करो, so that it gives you a lot of elements for your imagination। ऐसे कोई कैरेक्टर्स जो आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं लेकिन आप पोर्ट्रे कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके का कैरेक्टर कैसा बिहेव करता होगा। आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप खुद वो कैरेक्टर अपने लाइफ में कभी नहीं थे, लेकिन आपने देखा है, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो चलो वो कैरेक्टर लेट मी जस्ट रिक्रिएट इट एंड लेट मी इमेजिन माई सेल्फ इन दिस होल थिंग। ऑल राइट, now the next slide please। Script interpretation. A quote Stella Adler used at the studio was, the play is not in the words, it's in you। हमने ऑलरेडी इस चीज पे बात की कि जो जो लिखा हुआ है ना, जो शब्द है, प्ले उसमें नहीं है, नाटक उसमें थोड़ी है, नाटक तो आपके अंदर है, नाटक आपके अंदर है। इसीलिए वो इमेजिनेशन के बारे में बार बार बात करते हैं कि ड्यू विथ योर इमेजिनेशन कैपेसिटीज यू ब्रिंग दीज वर्ड्स इनटू लाइफ, ठीक है। तो आपके अंदर है वो नाटक, वो सारा ड्रामा, वो ड्रामेटिक एलिमेंट्स, वो नाटकीयता सारा आपके अंदर है। आप बनाते हो इन शब्दों को, नाटक आप बनाते हो, इन डायलॉग्स को बातचीत आप बनाते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, बात करो। जब आप लोग एक्ट करते हो, आप डायलॉग मत छोड़ो, आप लोग बात करो, मतलब उन सारे जो चीज, वो जो लिखी हुई है, जो डायलॉग्स है, उनको बातचीत की तरह, एज इफ वो मेरे ही शब्द है, उस तरीके से उनको डिलीवर करना, ठीक है। It is the actor's responsibility to respect the script with a willingness to read it deeply with a fertile imagination। ये एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से रिसर्च कर, एक स्क्रिप्ट पढ़ना सिर्फ कहानी जानना नहीं है,
एक स्क्रिप्ट पढ़ना एक रिसर्च भी है कि इस स्क्रिप्ट में, इस प्ले में, अगर आप लोगों में से कोई प्ले पढ़ता है तो आपको एक प्ले में बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो छोटा सा बस एक दो बार बस मेंशन किया गया है, बट अगर आप थोड़ा डीपली उसको समझने की कोशिश करें तो वो छोटी सी चीज जो है ना, वो एक्चुअली एक क्लू है किसी बड़ी घटना का जो शायद घट चुका है या घटने वाला है एंड ऑल. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट, डिकोडिंग ऑल दैट इज नो लेस देन अ रिसर्च. ठीक है. ऑल्सो एट द सेम टाइम आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और आप आपका जो प्ले है उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड of the play, what are the backgrounds of the characters in this play, what is the socio-economic position of the people in this play. So understanding a play, understanding a story, understanding a character from that perspective is very important, very very important, so that you actually understand how the mind of this character works actually. ठीक है. इस मेरा दिमाग एक तरीके से चलता होगा, एक स्टूडेंट का दिमाग अलग तरीके से चलता है, प्लस स्टूडेंट्स में से भी सबका बैकग्राउंड अलग होता है, तो बैकग्राउंड के हिसाब से हमारा एक अपब्रिंगिंग होता है और उस हिसाब से भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इफेक्टेड होता है. ऑलराइट. सो डिटरमाइनिंग ऑल ऑफ दैट, ये सारा रिसर्च में आएगा, एक एक्टर का अपना रिसर्च में आएगा. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच nowadays most of the practicing actors यानी जो बहुत ही ज्यादा एक्टिंग में इन्वॉल्व है, जो पैशनेट है, so this is one way which is highly practiced by the actors in today's time, कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कहाँ का है. अच्छा, जोग्राफिकल लोकेशन ये है, चलो फिर तो उसका पहनावा ऐसा होगा, लेकिन उस जोग्राफिकल लोकेशन में भी वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या वो विलेज से आता है, क्या वो गांव से आता है या शहर का है. अच्छा, विलेज है तो कौन से विलेज से है, क्या उस विलेज का कोई स्पेशल कुछ ऐसा है, कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वहां का हर इंसान इम्बाइब करता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरीके से बात करता है. ठीक है. और अगर मैं इंडियन, ये तो एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट हो जाते, जब स्टेला एडलर कहती है कि इसको एक रिसर्च करना है, एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें अलग हो जाती है. वही चीज जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है. व्हाट इज द जेंडर, व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, व्हाट इज द कास्ट, व्हाट इज द रिलीजन, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड. ऑलराइट. व्हाई जेंडर इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज हमारे देश में जेंडर को भी एक अलग तरीके से, हर जेंडर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उस हिसाब से क्या साइकोलॉजी रहेगी इस कैरेक्टर की. सो ऑल ऑफ दैट, नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स will come under research. All right. Now, willingness, the play is not in the words, it is in you. It is the actor's responsibility to respect the script with the willingness to read it deeply with a fertile imagination. This respect involves an understanding of where the playwright is leading the character, including understanding the character's environment and investigating the full setting of the play. ये play कहाँ, where is this play, the whole story set, इसका timeline क्या है, क्या ये past 60s की कहानी है, तो 60s की कहानी तो उस टाइम पे क्या होता था ना. So all the research जो factors अभी बताया, तो it all caters to that. Next slide please. Okay. The importance of action. स्टेला एडलर एक चीज हमेशा कहते हैं कि टू एक्ट इज टू डू. ये जो एक्ट वर्ड है, ठीक है, एक्ट वर्ड का मतलब ही है कुछ करना, ना कि बैठ के सोचना कि हाँ मैं अभी एक्ट कर रहा हूँ. नो, योर एक्शंस डिफाइन योर कैरेक्टर, योर एक्शंस डिफाइन द पर्सनालिटी ऑफ योर कैरेक्टर. एक्शन का मतलब हमेशा
झाड़ू मार रहे हैं सच में, या फिर मारपीट कर रहे हैं, नॉट दैट, बट द स्मॉल एक्शंस व्हिच अ पर्सन डज. ऑलराइट, actions define the profession of the character. अगर आप थोड़ा सा, अगर आप ऑब्जर्व करें अपने आप को भी या फिर अपने चारों तरफ के लोगों को भी, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक जेस्चर, कुछ ना कुछ एक छोटे से छोटे कुछ हरकतें, ये सारी चीजें रहती ही हैं. एंड ऑल दोस थिंग्स रिफ्लेक्ट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट इज, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट इज, व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑल टुगेदर. सो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. To act is to do. Simple. Drama depends on doing, not feeling. Feeling is a byproduct of doing. ठीक है. ड्रामा जो है वो फील करने में नहीं, फील तो ऑडियंस भी करती है आपको. अगर आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज है, रस एंड भाव. ठीक है, नवरस में रस पढ़ाए जाते हैं, एंड देयर इज भाव. भाव इज समथिंग, भाव इज द इमोशन, और इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन. आपके अंदर जो एनर्जी है वो मोशन में, वो मूव कर रहा है. ऑलराइट. भाव एक्टर का होता है, और उस भाव से जो फील होता है वो ऑडियंस का होता है. तो फीलिंग इज मोर ऑफ अ पैसिव थिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू फीलिंग बाय एन एक्टर, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग व्हिच यू आर डूइंग. ऑलराइट. आप बस बैठे बैठे हाँ फीलिंग आ रही है बहुत ज्यादा, तो कुछ कर रहे हो, कुछ हुआ है अभी, इसी वजह से फील कर रहे हो. All right. Our approach to acting depends on connecting strongly to each other by way of actions and creating dramatic events that take place between I and thou. Thou मतलब you. ठीक है, ये thou, ये Victorian English में thou कहते हैं. So I and you, whatever is happening between me and you, me as the actor, you as the co-actor. Okay. कल हमने ब्रेख्त पढ़ा था, वहां पे, यहाँ पे ब्रेख्त और स्टेला एडलर के टेक्निक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यही दिखेगा कि ब्रेख्त उतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा है कि आपके को एक्टर के साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग है कि नहीं, वो केमिस्ट्री है कि नहीं. यहाँ एडलर टेक्निक में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप दैट रिलेशनशिप विथ योर को एक्टर, क्योंकि दोनों के मोटिव्स अलग हैं, दोनों के मोटिव्स बिल्कुल अलग हैं. ठीक है. सो व्हेन, जब आप अपने को एक्टर के साथ या फिर रादर आप अपने को कैरेक्टर के साथ जब वो बॉन्ड बना रहे हो, वो कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हो, वो चाहे आप दुश्मन ही प्ले करो या फिर दोस्त ही प्ले करो या कुछ भी प्ले करो, वो कनेक्शन होना, आपके रिलेशन के हिसाब से वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. ठीक है. और वो कनेक्शन दो लोगों के बीच में कनेक्शन किस तरीके से होता है, बाय द थिंग्स यू एक्चुअली डू. ठीक है. मैं जब मोनोलॉग में बोल रही हूँ, वो मोनोलॉग ठीक है, वो चलो, वो किसी और के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है. लेकिन जब मैं किसी और के साथ सीन कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली डूइंग एज इन, नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग विथ माई हैंड, की वाइपिंग द फ्लोर और यू नो ब्रेकिंग, वो एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना, ये कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना सीम्स टू बी अ वेरी फेवरेट एग्जांपल ऑफ माइन. एनीवेज, सो ये उस तरीके के करने के बारे में नहीं बोल रहे. ये जो इमोशंस है, ये जो एनर्जी है, ये जो इमोशन टेक्स्ट के थ्रू आपके अंदर, आपके कैरेक्टर के अंदर पैदा हो रहा है, उसके वजह से आपके अंदर वो क्या चेंजेस आ रहे हो, क्या जेस्चर्स क्रिएट कर रहा है, वो आपके स्पाइन को हिला रहा है कि नहीं. ऑलराइट. सो इट इज मोर टॉकिंग अबाउट दैट. ऑलराइट. एक इनर एक्शन, एक आउटर एक्शन, बोथ. Now, and do you think it's now 7 o'clock? So can we do a break for 10 minutes and come back? sure, we can. So at 7:10 we will be back, guys. So this is a break. And we will continue with this slide only, this same slide only. So guys, we are back now and we can start. So yes, we can start. Yeah.
If I can have the Yeah, slide. I'm just trying to Yeah, sure. share. Just a moment. Why it is not showing? Let me just see. Sure, no problem. Give me a time. Is it full screen? And then we start video. So wait a minute. Speakers view. Screen share. Why it is happening like this? I'm not able to figure it out. Okay. So escape full screen. Go to share screen. This is the one. Share. Okay. So we got it now, and now I have to go full screen here. Okay. So this was the mega last importance of action. Yeah. Is it being So, covered, or we need a to? little bit left. Little bit is left. So, our approach to acting depends on connecting strongly to each other by way of actions and creating dramatic events that take place between I and thou, not between me and myself. Obviously, मेरे साथ कई बार आपको आपको ये याद होगा या आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि ये अपने में ही रहता है, अपने आप में ही रहता है. Why? Because there is nothing we can see, no actions we can see. ठीक है. So when you do an action, when things are happening between two people, there is a lot of movements, not only physical movements but also emotional movements. झगड़ा हो रहा है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, जेस्चर्स आ रहे हैं, मेरी मेरी जो बात है मैं सामने वाले पे फेंक के मार रही हूँ अपनी बातें, ठीक है. So there are actually a lot of things, lot of movements happening in that way, ठीक है. These actions include the subtle, creative on-stage choices to which actors commit. ठीक है? So, can we go to the next slide? Yeah. The cultivation of a rich humanity. The actor's instrument is the actor's own body and brain. An actor needs to develop resources of information and experience that connect with the rest of the world socially, culturally, historically, and politically, thereby enriching the actor's instrument that is required to perform. The cultivation of rich humanity. ये rich humanity यानी वो पैसे वाला rich नहीं है, but how rich is the human inside you? How human are you? ठीक है. We say that we are more human when there is empathy. Empathy यानी there is a difference between sympathy and empathy. Sympathy यानी हाँ मेरे सामने कुछ हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, सामने वाले इंसान के लिए बुरा लग रहा है. Empathy is when I feel the same way. जो कैरेक्टर या सामने वाला इंसान उस पे क्या गुजर रही है, उसकी हालत देख के वही सेम चीज मुझ पे भी गुजर रही है, ठीक है. I'm actually going through what the other person is going through emotionally. That empathy, I actually exactly understand what the other person is going through. Not sympathize, बुरा लगना नहीं, but actually वो आपके अंदर भी होना. कई बार कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कुछ ऐसे स्टोरीज होते हैं जो हम देख के या पढ़ के
we tend to cry, we relate. ये जो हम कहते हैं ना कि I can relate to this, ये relate होना, ये relate होने का ही next level पे होता है जब आप empathize करते हो दूसरे इंसान से. Now this empathy, how does this empathy, you know, take place in you when you know quite deeply कि जो सामने वाला इंसान है या फिर जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को आपको प्ले करना है, उसका बैकग्राउंड, उसका उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है. ठीक है, यू you know the world of the character so well that you can actually empathize with the character, not sympathize but empathize with the character. That's why the cultivation of rich humanity is very important, बिकॉज एक एक्टर का इंस्ट्रूमेंट ही है उसका बॉडी, उसका अपना माइंड. आप अपने दिमाग से, एक्टिंग बॉडी से तो नहीं होती, सबसे पहले तो वो आपके दिमाग से होती है. ठीक है, आपके दिमाग में घटना घटती है, फिर जाके आपका बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है. तो फर्स्टली द ड्रामा हैपेंस इन द माइंड, द स्टोरी हैपेंस इन द माइंड, and how your body reacts to it, how you behave, what is your body language is just an outcome. So in that way, the brain and the body is an instrument. Now how do you make it prepared for this character? Because you know enough about this character. ये कैरेक्टर कहाँ का है, कैसा है, आप अपने, क्योंकि आपने रिसर्च सही से किया है, आपने ऑब्जर्व किए हैं वैसी चीजें, आपके लिए उस चीज को इमेजिन करके रिक्रिएट करना और भी ज्यादा सफल होता है. ठीक है, an actor needs to develop resources of information and experience. ये एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ हुआ है तो उसी को रिक्रिएट कर दिया. किसी चीज के बारे में जानना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस ही है. ठीक है, ये जो हम कहते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अपने इमेजिनेशन का पिटारा बढ़ जाता है, कैरेक्टराइजेशन का पिटारा बढ़ जाता है. ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो चीज मैंने देखी, समझी, कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर घटाया है उस चीज को. ठीक है, घटाया यानी कम नहीं कर, लेकिन उस घटना को घटित किया है मैंने अपने अंदर. ठीक है, तो इसी तरीके से किसी चीज के बारे में डीपली जानना, डीपली उसको समझना अपने आप में उस चीज का एक एक्सपीरियंस है. ठीक है, दैट कनेक्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, socially, culturally, historically, politically, thereby enriching the actor's instrument that is required to perform. आपका दिमाग ऑलरेडी इतना नॉलेजेबल है कि आप इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो. ठीक है, yes, the next slide please. Over. Oh, it's over. That's really nice. कल जैसे शूट अप कर गया था, आज एकदम टाइम पे पूरा हो गया. So if there is any question, कल क्या हुआ था कि प्रेजेंटेशन के बीच में, लेक्चर के बीच में ही सवालात आ रहे हैं, तो now it can be a good time to answer the questions if at all you have any questions. So, ma'am, if I could ask you just one question, that would be that according to you, so how did Stella Adler took the techniques forward from Stanislavski, and what will be the basic differences between the two? How she improved, and what was the difference that was in Stanislavski and it's not found in Stella Adler, or vice versa? The very fundamental difference was कि स्टैनिस्लावस्की क्या कहते थे कि आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको आप काम में लगाइए. the very particular thing which we say कि इमोशनल मेमोरी आपका क्या है. अगर ये this is a scene and I need to portray this scene, this is the situation, ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में है, तो इन दैट सिचुएशन मैं एज अ पर्सन पर्सनली मैं कब इस सिचुएशन में थी. ठीक है, ये अभी एक इमोशनल सिचुएशन है, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं रिक्रिएट कर रही हूँ. स्टेला एडलर ऑन इट्स फेस शी सेज कि आई एम एक्टिंग, व्हाई वुड आई रिक्रिएट माय ओन एक्सपीरियंस. मैं एक्ट कर रही हूँ तो मैं अपना इमेजिनेशन लगाऊंगी. तो दिस इज द fundamental difference.
between Stella Adler and Stanislavski. हाँ. I have just one question regarding this. So Yeah. Stanislavski in his book has a particular chapter which focuses on what if, and what if he uses Yes. to insist imagination in yourself. So if he's Yes. also asking the actors to instill in the imagination in themselves by using the phrase "what if," then how come Stanislavski is not using that and Stella Adler is using only imagination? Because Now, Stanislavski clearly says that use the concept of what if. right. See, Please clear this. जितने भी मास्टर्स आए हैं ना इस दुनिया में, एक्टिंग के मास्टर्स जितने आए हैं, बी इट स्टेला एडलर, बी इट ली स्ट्रासबर्ग, everyone has taken one element from Stanislavski's system and mastered it. All right. Stanislavski also talks about method acting. All right. In some way, not totality. Not totality, of course. मतलब मेथड एक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसका सीड जो है वो स्टैनिस्लावस्की ने बो दिया था. उसी चीज को लेके ली स्ट्रासबर्ग ने उसका एक पूरा सिस्टम बनाया. ठीक उसी तरीके से नाउ दिस व्हाट इफ, द इमेजिनेटरी सिचुएशन, to achieve this imaginary situation in the most truthful manner, there you might use some emotional memory. All right. To achieve that imaginatory situation, you might use some emotional memory there. Now, Stella Adler यही पे कहते हैं कि imaginatory situation है, तो मैं अपना emotional memory नहीं लगाऊंगी. I will recreate. I will recreate it in my imagination and then do it. Of course, Stanislavski ने जितनी भी चीजें कही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उन्होंने कवर नहीं किया. ठीक है. He also talks about imagination and doing something totally new. अगर आप चेकोवियन टेक्निक पे बात करेंगे, चेकोवियन टेक्निक also talks about imagine how you can do the characterization based on total imaginatory circumstances. Now he has also come from the Stanislavski school. Method, yes. Okay. Somewhere there are 10 points in the Stanislavski system which covers all of it. ठीक है. हाँ, अभी किसी एक चीज को अचीव करने के लिए आप बाकी चीजें यूटिलाइज कर सकते हो. So, Stella ma'am, Adler totally says no to it. I okay, mean, so, no to emotional memory. Yeah. okay. Sorry to interrupt. There's just one further question. Yes. So, Stella Adler has shunned the concept of emotional memory to be used in recreating or enacting something. Yeah. Okay. Emotional memory, method acting, in particular, she even used this thought कि अगर if there is a scene where my character is really crying because the mother is sick, I would not like to imagine my own mother getting sick and me really emotionally suffering. I would not want to do that. If that is acting, I don't want to do it. So that's what she says. That's how profoundly she um, advocates imagination. All right. And Thank you, she ma'am. even says ki this method acting, it is schizophrenia. It seems to be very similar to schizophrenia to me. I don't want to do it. If that is acting, I don't want to do it. So yeah. Thank you. Okay. Yes, Rohan. Can't hear you, Rohan. I can't hear you. Hello. Yes. Yeah. So in the book, Stella Adler says that it's easy to fool the mind, but not the body. Yeah. I have read that chapter multiple times and I could not get it. Like, Okay. yeah. When it comes to the body, our body has some limitations. Our mind does not have. Okay. Why it is difficult to fool the body? Because of its characteristic. कुछ characteristic मेरे body के ऐसे हैं जो inherent है, जो बहुत सालों से मैं इसी तरीके से रही हूँ, and suddenly my body cannot change to something else. All right. और इसी वजह से
You can imagine a lot of things about yourself कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, but when it comes to the body, there are a lot of limitations to it. All right. Secondly, एक और चीज, अगर मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से इस बात को कहूँ, if I talk from the perspective of the audience, then जो देखने वाला इंसान है, जो ऑडियंस आपको देख रहा है, if this thing, if there is a thought which is happening in your mind, but if it is not getting reflected through your body language, it is not well delivered. All right. तो ये जो एक concept है कि it is easy to fool the mind but not the body, somewhere caters to this. But how do I fool the body? You don't fool what does she say? She says that it is easier to fool the mind but not the body. Yeah. But like in some circumstances, you have to, like, even Michael Chekhov says कि you, like, it's pura, like, you change the shift the body weight to different parts of your body and अपना weight shift करके देखो and all that. But how do you do it? Like, is there some practice that you do every day to, like, Yes, there are practices. how Oh do you do God. that? Yeah. So That I can't just say and explain you. For that, you need to be in a practical class and do it for yourself. Only then you would be able to understand certain things you have to do. I'm sorry. As an actor, as a practicing actor, कुछ चीजें जैसे कि माइकल चेकव बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं कि you continuously you correct. do an action in repetition, and then after a point of time you can actually find different meanings. ये जब तक आप खुद से करोगे नहीं, and maybe under a guidance, you have to explore it yourself to understand this, you know. ये बहुत ही practice based concept है. कुछ चीजें जो थियोरी में बात करके बोल के समझ सकते थे वो तो हुआ, लेकिन एक्टिंग इज टू डू, तो कुछ चीजें आपको करके ही समझ आएंगी. One last thing. Again, in the book, Stella says in the first, like, she gives assignments. Some, like, so she's in the first assignment. She says an actor needs to know every shade of color, every tint of it, and she should know कि हर green में क्या difference है. Yeah. But why? हाँ. Okay. जब आप एक्ट करते हैं, ये शायद थोड़ा सा आपको थोड़ा परफॉर्मेंस का अगर एक्सपीरियंस हो तो शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा. हर कैरेक्टर का अपना एक शेड होता है, ठीक है. हर कैरेक्टर का अपना एक शेड होता है. क्यों? क्योंकि हर कैरेक्टर का, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारा अपना एक ऑरा है. वी ऑल हैव एन ऑरा, एंड इफ यू स्टडी अबाउट ऑरा, ऑराज हैव कलर्स. All right, that is how I can explain you कि every aura has a color. Now, in the same way, characters have their aura, characters have their own shades and colors. Okay, so it is a very good exercise to understand the measurements of emotions. ठीक है. जो इमोशंस है ना, अभी अगर एक एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मैं अपने क्लास में कराती हूँ जो बिगिनर्स होते हैं, कि 1 से 10 तक की, अभी ये जो 1 से 10 तक का जो एक ये नंबर्स है ना, इनको आप एक कोई भी कलर ले लीजिए और उनके शेड के हिसाब से आप यू कैन शेड ऑफ ग्रीन में भी, ठीक है, उसका सबसे डार्क, उसका एक शेड लाइट, उससे भी एक लाइट, तो इस तरीके से 10 से लेके 1 तक लेट अस मेक अ मीटर. ठीक है. I have it. या ओके. नाउ अगर मैं इसको इमोशन से जोड़ के मैं आपको अगर बताऊं कि एक सीन है जिसमें सीन विन भूल जाइए, आपको रोना है या फिर आपको हंसना है, ठीक है. आपकी जो हंसी है उसको हम मेजर करेंगे 1 से लेके 10 तक, ठीक है. हंसी को हम मेजर करेंगे 1 से लेके 10 तक. तो अगर मैं 1 कहूं तो आप थोड़ा सा हंसोगे. अगर मैं 2 कहूं, ठीक है, अगर मैं 2 कहूं तो ठीक है. 3 अगर कहूं तो इस तरीके से आपका एक पर्टिकुलर सीन है, उसमें आपका ये पर्टिकुलर इमोशन है, ठीक है. कितना हंसना है. अगर इस चीज में ना जाऊं कि जैसा मेरा इंपल्स आएगा, जैसे मेरी फीलिंग्स आएंगी, मैं उसी तरीके से करूंगी. इसको थोड़ा बाजू में रख के अगर मैं इसको बहुत टेक्निकली करूं कि इस सीन में मुझे 4 तक ही हंसना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं जाना है,
ट्रेन्ड एक्टर्स के साथ क्या होता है कि एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो। आपने वो सारा इमोशन, वो सारा कैरेक्टराइजेशन, उस सीन को इतने अच्छे से कैप्चर कर लिया है एज एन एक्टर कि आप बस अपने हिसाब से ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करो एंड इट विल बी डन। इट विल बी डन। देखने वाले को नहीं समझ आएगा, बट यू आर एन एक्टर, यू नो व्हाट यू हैव डन। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हर चीज को विजुअलाइज करना आना बहुत जरूरी है। अगर अगर इमोशंस को आप कलर में डिवाइड करोगे, व्हाट कलर डज सैडनेस हैव? सैडनेस हैज, ठीक है, सैडनेस का क्या कलर है? Purple for me. पर्पल। फाइन फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील सैडनेस इज थोड़ा, हाँ मेजेंटा, हाँ मेजेंटा पर्पल Magenta थोड़ा, purple. हाँ हाँ If I'm not wrong, are you ठीक है। talking about this? These are shade cards. these are, हाँ शेड कार्ड तो ये है, Yeah. ठीक है। मैंने थोड़ा इमोशन का जो मेजरमेंट है उसके साथ शेड कार्ड को थोड़ा सा मर्ज करके समझाया Yeah, that's why I'm आपको। saying that. हाँ, या Yeah. ऑलराइट। नाउ अगर अगर सैडनेस का कलर अगर पर्पल है तो Hmm. पर्पल का भी कौन सा शेड आना चाहिए इसमें? ऑलराइट, All सो right. yeah, so in that way, and it is very important for an actor to visualize everything कि अगर जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे बातों से क्या लाइन बन रही है या फिर गोल गोल बन रहा है? हर किसी के वॉइस में एक ऊपर नीचे वेव्स Okay. बनते हैं, Yeah. राइट? तो हर चीज को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, एंड कलर से विजुअलाइज करना इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू विजुअलाइज। ठीक है, और इस तरीके से ये जो एक चीज, एक एग्जाम्पल दिया कि अगर सैडनेस का कलर पर्पल है तो इस सीन में इस जगह पे मेरा जो मीटर होगा वो सैडनेस का पर्पल का कौन सा शेड है एग्जैक्टली। These things really help to expand your imagination capacities in a very constructive way. All right, imagination is a very, एक ऐसी चीज है कि शायद आप हमेशा पकड़ ना पाए इस चीज को, but if you observe, imagination is complete in itself. Let's do an exercise छोटा सा कि Right. ये जो कहते हैं ना कि imagination is complete in itself, how is it complete in itself? तो रोहन, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आप जस्ट उस चीज को एक बार विजुअलाइज करना। जस्ट विजुअलाइज अ हाउस which is surrounded by fields. Okay. There are fields and there is just a house. All right, अब मैं इस चीज से रिलेटेड जो भी पूछूंगी ना, आप उसका एग्जैक्ट आंसर दे सकेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई राइट नाउ? It's a twilight type. It's halka ट्वाइलाइट, ओके। tint of red. हाँ हाँ, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने Just इमेजिन twilight. किया है, हाँ एग्जैक्ट वो बताना, ठीक है। आर देयर एनी पीपल अराउंड? One girl. वन गर्ल, ओके। व्हाट इज शी वेयरिंग? I've not thought that, but ओके, ठीक है, डजंट मैटर। आर देयर एनी ट्रीज अराउंड? no. नो, ओके। इज इट अ फुल मून? फुल मून है कि The क्या moon है? has not come yet. It's नॉट कम twilight. येट। व्हाट इज द कलर ऑफ द शेड ऑफ द हाउस? It's a old house with हाँ like brownish tint hai. It's a very हाँ, old house, brings ओके, of collapse wala, farmer's house type wala scene. हाँ, Yeah, ओके, but it's not an Indian house. It's ठीक है, old English house type. okay. What is the color of the wall of the house? I don't know the color, but I can see it. I don't know which. It's like उसमें काई लगी हुई है? beigeish अच्छा, type पुरानी दीवारें जैसे येलो हो जाती हैं. हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी I can go on and you will keep on answering, you know, you will just keep on answering because our imagination is complete. Now when it is complete, it is very important that we are able to channelize it. ठीक है, जहां जिस तरीके से, सो दिस विजुअलाइजेशन थ्रू कलर्स, एक मीटर लगाना,
ये जो हर एक शेड को अच्छे से जानना, विजुलाइज कर पाना, ये एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज इमेजिनेशन, अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन इसको चैनलाइज करना बहुत ट्रिकी है। Hmm. ठीक है, दिस इज जस्ट वन वेज ऑफ डूइंग इट। Alright. ऑलराइट, ओके, One last thing. या, When you're channelizing something, and you're doing some kind of action, for example, voice, एक hyper थोड़ा सा आदमी है who's वैसे energetic quite, and you're trying to like visualize his pitch कि अब वो अब ऊपर नीचे बात करता है, very hyped up guy, and when you're doing it, and then when you see yourself doing it, and उसमें काफी difference होता है when you're doing हाँ, it. हाँ, तो वो जो बिल्कुल, डिफरेंस जो होता है इज लाइक नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, ये गलत हो गया ये. तो हाउ डू हाँ, यू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ व्हाइल डूइंग इट? इज इट लाइक प्रैक्टिस और इट इज? it is practice, of course. that's हाँ, why that's why you have a director. ओके. ठीक है, that's why you have a director. जो आपके अंदर जो इमोशन है, जो घटना आपको अंदर बसाना है, जिस घटना को, वो तो आपके अंदर है, बट हाउ शुड इट लुक लाइक, हाउ इट शुड अपीयर, the director helps you channelizing that, the director helps you to polish all that, aesthetically उसको अच्छा बनाना. अच्छा, as an actor it is a very very wrong practice to act in front of the mirror. कभी नहीं करना चाहिए ये. why? क्योंकि आईने के ऊपर ही सामने, ऊपर से. नहीं ऊपर ही ऊपर से नहीं, यू कंटिन्यूअसली यू नो कंट्रोल योरसेल्फ कि अरे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ. दिखना चाहिए. एक बार आपने देख लिया ना कि ये करते हुए आप कैसे लग रहे हो, एक्चुअल में कैसे लग रहे हो, और वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद जाके आपको जब करना होगा ना कुछ, इट विल क्रिएट मेंटल ब्लॉक्स. अपने आप को विजुअलाइज करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन मिरर के सामने नहीं. Right. उसको एक्चुअल में करो, करके देखो. यू हैव अ डायरेक्टर, लेट द डायरेक्टर सी इट, but never do your practice, never do your practices, acting practices in front of the camera. ठीक है, it is a very wrong practice. क्योंकि उसमें ना हमारा दिमाग इस चीज पे नहीं जाता है कि हमारा इमोशन क्या है, ट्रूथफुल है कि नहीं. हमारा दिमाग ठीक ठीक वहां पे अटक जाता है कि अरे कैसा लग रहा हूँ मैं, Aesthetics. एस्थेटिकली करेक्ट है कि नहीं. Aesthetics. Now that creates a very big blockage. ये जो एक जेन्युइन जो बात है ना, कि वो जो ऑनेस्टी है आपके काम में, वो कहीं ना कहीं खो जाता है. ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, अभी 15 मैम, मिनट हैं, कुछ और पूछना है लोगों को तो पूछ सकते हो आप लोग. मैम, यस, मैम, मैं बाइपोल ब्रेक के बारे में बात करना चाहूंगा. हाँ, ब्रेस्ट, मुझे ओके ओके, हाँ, मुझे लगता है मैम वो एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने थिएटर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जैसे कि मूर्तिकार मूर्तियों करता है ऐसा कुछ. क्योंकि हम जितने भी पढ़े वो उन सबसे अलग थे, क्योंकि उन्होंने एंटरटेनमेंट पर बहुत ध्यान नहीं दिया. अब हम उससे भले कितने भी वो देख लें, उनके एपिक थिएटर की जितने भी फंडामेंटल्स देख लें, चाहे वो एक्टर की अदला बदली हो, या फिर जैसे कि मैंने एक बात सोची थी तभी कि खाने का एक्ट करना है, पीने का एक्ट करना है. अगर हम सोचें तो खाने की थाली 50 रुपए की आएगी, बोतल 20 रुपए की आएगी, पर वो उन सब चीजों को काट रहे थे ताकि ऑडियंस उसे रेट न कर पाए, उसे वो एंटरटेनमेंट की फॉर्म में न देखे. वो चाह रहे थे, जैसे कि आप जानते हो वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे. वो चाहते थे थिएटर के जरिए वो आसपास के अराउंड में कोई वो हो, शुरू हो, कोई क्रांति शुरू हो या कोई बदलाव आए. आप क्रांति शुरू हो, हाँ, क्रांति शुरू हो, वो तो खैर है, वो तो लोगों पे भी डिपेंड करता है कि ये जो क्रांति शुरू होना, ये एक कलेक्टिव प्रोसेस भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो क्रांति आपके अंदर एज एन इंडिविजुअल आप सच में देख पा रहे हो कि नहीं. ब्रेख्त का मेन यही था कि दुनिया जैसी है आप उसी तरीके से उसको देखो, आप उस तरीके से मत देखो जैसा आपका कंडीशन, आपको कंडीशन किया जा रहा है. आपको कंडीशन जिस तरीके से किया जाता है, आप उस तरीके से देखते हो. ये ना करके एक्चुअल में जैसा है आप वैसा देखो. हाँ, एक इंसान मरा पड़ा है, इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग. ठीक है, तो क्यों मरा है एंड ऑल वो तो है ही, ऑफ कोर्स,
बट ये जो बहुत बेसिक चीज है कि एक इंसान मरता है तो उसके पीछे क्या क्या और चीजें, उसका परिवार का क्या होता है, ठीक है, व्हाट डज इट, बहुत ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो जैसा है, दुनिया जैसी है, आप पहले उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मेन था। एक्टिविस्ट, ऑफ कोर्स एक एक्टिविज्म फिलॉसफी, एक एक्टिविस्ट मेंटालिटी थी उनमें, और उनका यही मेन था कि थिएटर एक इतना पावरफुल मीडियम है। ये जब आपको थिएटर के तरफ से एंटरटेनमेंट मिलता है या कुछ भी ऐसा दिखाया जाता है जो आपको मेस्मराइज कर देता है, भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए सब कुछ, कितना पावरफुल मीडियम है मतलब ये। तो इस पावरफुल मीडियम को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही क्यों, और भी वैल्यूएबल चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल हाँ, एक्टिविस्ट मेंटालिटी थी उनकी, लेकिन वो जाने जाते हैं एज अ प्ले राइट, एज अ पोएट। अपने लिटरेचर मैं को उन्होंने किसी एक किसी एक मोटिव से उसको आगे किया, और उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस था, बहुत मार्क्सवाद का बहुत इन्फ्लुएंस था। प्लस उन्होंने अपने लाइफ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, नाजिज्म को उभरते हुए देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखा, कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक कोल्ड वॉर जो चल रहा था, वो सारी, तो बहुत सारी चीजें देखी है उन्होंने। और हम जिस तरीके के भी क्रिएशंस करते हैं, अगर आप एक फिल्म मेकर हैं या फिर अगर आप एक एक्टर है, आपके अपने चॉइसेस होंगे कि मुझे इसी तरीके का काम करना है, यही करना है। उसका रीजन है कि आपका बैकग्राउंड, आपका लाइफ में एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने क्या देखा है, क्या चीजें आपको प्रभावित करती हैं। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में बचपन से बहुत सारी ऐसी चीज अपने आसपास देखी है जो शायद उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। अपने दोस्तों को, स्कूल फ्रेंड्स को, बिकॉज जंग छिड़ी हुई है तो वो मर गए, उसी के बीच में किसी तरीके से मर गए। वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उसके बाद और भी बहुत सारे टेंशन्स अपने आसपास देखा, जिसके वजह से उनके, वो जो भी लिखते थे, जो भी क्रिएट करते थे, उन सारी चीजों में उनके अपने एक्सपीरियंसेस का, उन्होंने जो भी देखा उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दिखता है हमें। तो यस मैम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे, उनका मुझे मतलब समझ नहीं आया, जैसे कि मोन्टाज टेक्निक और बुर्जुआ एटीट्यूड, ये क्या थे मैम? बुर्जुआ एटीट्यूड, मोन्ताज टेक्निक, नरेश सर ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ये पूरा ही एक फिल्म मेकर की भाषा है, ठीक है। वो बुर्जुआ का मतलब है कैपिटलिस्ट क्लास, पैसे वाला, हाई क्लास, जी, पूंजीवाद बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो बुर्जुआ एटीट्यूड उसको कहते हैं। और बुर्जुआ का ऑपोजिट होता है प्रोलेटेरिएट, मतलब वर्किंग क्लास, ठीक है। अभी टाइम ओके मैम। तो प्रशांत बाबू, एक फिल्म है जिसका नाम है डिस्क्रीट चार्म ऑफ बुर्जुआजी बाय लुई बुनवल। अब ये लुई बुनवल कौन है? कभी सुना है नाम जीवन में आज तक? नहीं सर। नहीं सुना, बहुत अच्छी बात है, सोते रहो। एक एमसीक्यू की किताब है जो 1000 रुपए तुम लोगों ने दिए होंगे, ऑनलाइन ले रखी है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने। उसमें एक आदमी जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल के कंपटीशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और 3 बार फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर जीता है, उस आदमी का नाम है लुई बुनवल। उसमें से एक फिल्म है डिस्क्रीट चार्म ऑफ बुर्जुआजी। कभी जीवन में समय मिले, इंटरनेट पे डाउनलोड कर पाओ तो देख लेना, ना मिले तो मत दे। बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सोचना है और बहुत कुछ समझना है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात। तो ये हो गया मतलब बुर्जुआजी का। मैम से पूछना था सर। मैम से पूछ लो, मैं तो खैर हूँ ही घर का आदमी, मैं तो कभी बता दूँ। चलो ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कि स्टेनिस्लावस्की में और स्टेना एडलर में जो मेन डिफरेंस था वो था इमोशनल मेमोरी को लेकर, क्योंकि वो जो एल्डर थी वो इमोशनल मेमोरी के एकदम अगेंस्ट थी, उनका आइडिया उनके बिल्कुल अगेंस्ट था। ये आपके शब्द थे राइट? हाँ बिल्कुल अगेंस्ट, पर यानी मैंने वो सपोर्ट नहीं करती थी इस चीज को। हाँ ओके, लेकिन मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि 1934 में वो पेरिस गई थी और उन्होंने 5 हफ्ते को इंटेंसिटी वी पढ़ा था
और उन्होंने ये भी देखा था कि जो स्टेनिस्लावस्की हैं उन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया था, वो भी ये मानने लगे थे कि इमोशनल मेमोरी के अलावा भी इमेजिनेशन पर महत्व दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये अंतर कैसे रह गया? ये अंतर तो रहा नहीं फिर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाद में स्टेला एडलर उसको सपोर्ट करने लगी, मतलब इमोशनल नहीं मैम, मेमोरी को? तो मैं मुझे एक्चुअली समझ स्टेनिस्लावस्की नहीं ने, आया। हाँ ओके कोई बात नहीं, स्टेनिस्लावस्की ने अपनी थ्योरी रिवाइज की थी मैम, हाँ वो इमोशनल मेमोरी के अलावा इमेजिनेशन पर महत्व देने लग गए थे। हाँ देखिए, स्टेनिस्लावस्की इमेजिनेशन के अगेंस्ट नहीं थे, या फिर उन्होंने ये प्रोमिनेंटली, इमेजिनेशन स्टेनिस्लावस्की सिस्टम का एक पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, वो भिन्न नहीं है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम स्टेनिस्लावस्की को नहीं था, प्रॉब्लम स्टेला एडलर को था कि ये जो इमोशनल मेमोरी है ना, हम इसको मैं एक्टिंग नहीं मानती। ठीक है, स्टेनिस्लावस्की सिस्टम आप पढ़ेंगे, उसमें इमेजिनेशन का भी चैप्टर है। जी, मैजिक इफ। ठीक है जी मैम, मैजिक इफ, व्हाट इफ, हाँ, ये आई थिंक मैजिक इफ पे किसी ने एक सवाल पूछा था, आपने सुना था मेरा जवाब क्या था उसमें? जी तो फिर ये सवाल कैसे आ रहा है? मैम, बेसिकली हम कह सकते हैं ना, देखिए मैजिक इफ, व्हाट इफ, मैं ये कह रही हूँ आपको, आप यहाँ मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए बैठे हैं क्या बाय एनी चांस? आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं मैम, मैंने आपसे ये ऑलरेडी कहा है कि इमेजिनेशन स्टैनिस्लावस्की सिस्टम का पार्ट ऑलरेडी है। स्टैनिस्लावस्की इसके अगेंस्ट नहीं है, इमेजिनेशन के अगेंस्ट नहीं है, ये तो पार्ट है उनके सिस्टम का। स्टेला एडलर बल्कि वो ये कहती है कि स्टैनिस्लावस्की सिस्टम में इमोशनल मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं, मैं इस चीज को अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं करना चाहती। समझ आया आपको? ओके मैम, हाँ यस मैम, समझ आया? कोई डाउट है अभी? नो मैम। ओके, मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ कि पूरा का पूरा जो टेक्निक्स है जो आपने 5 नरेश सर, आप अभी किसी का नाम लिया था आपने, कानिस फिल्म फेस्टिवल में, तो आप प्लीज कांस फिल्म फेस्टिवल, हाँ, कान तो दिखाई दे रहा है, ये वाला यस सर, कांस फिल्म फेस्टिवल में कान, इसमें आग भी चाहिए होता है, कान भी चाहिए। सर। आप बता सकते हैं दोबारा? दोबारा नहीं बताऊंगा, ये वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके सर, वीडियो मिलेगा ना रिकॉर्डिंग आपको। यस सर। कुछ और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा हार्ट अटैक आएगा। एकदम मोटी सी किताब दिखाई दे रही है आपको, ये कल मैंने खरीदी अपनी जिंदगी में, 2,500 रुपए। इसमें 11 बड़े पेंटरों की 100 पेंटिंग का डिस्कशन है। मेरी 54 साल की उम्र है। एक दूसरी किताब कारावाजियो, पेंटिंग की दुनिया का मास्टर माना जाता है लाइटिंग के अंदर। दूसरी किताब है, इसका भी कॉस्ट 1000 रुपीज है, ये समझाने के लिए। और ये तीसरी किताब है जिसमें वर्ल्ड की 50 इंपॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में डिस्कशन है। ये तो कल की 3 किताबें, और मैंने कुछ 15 किताबों की लिस्ट बनाई है जो मुझे फ्यूचर में खरीदनी है और पढ़नी है। ऐसा नहीं खरीद के रख दो लाइब्रेरी में, कोई आके पढ़ेगा। कोई पढ़ता उड़ता नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आते हैं टूरिस्ट लोगों की तरह और चले जाते। तो अगर तुम्हारा सपना है, जो तुम सोच रहे हो कि हम एफटीआई जाएंगे, तो एफटीआई में गंवार आदमी नहीं घुस सकता। लिख लो सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 जो मुझे 10th क्लास में समझ आ गया था, यूपी बिहार दरभंगा मोतिहारी, मतलब हिंदी बेल्ट, बाहर हो जाओ। एनएसडी में घुस सकता है यूपी बिहार दरभंगा मोतिहारी, एफटीआई में नहीं घुस सकता है, याद रखना। फर्क है थोड़ा सा। तो एक तो इंग्लिश सीखना चालू कर दो सब लोग जो अभी तक सो रहे हैं 15 साल से। 12 + 3 = 15। 15 साल की एजुकेशन हो चुकी है, और अभी भी जो लोग सोच रहे हैं प्रशांत टाइप के लोग, टाइप मतलब ऐसे, हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है। फ्रांस में आप फ्रेंच बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्मनी में आप जर्मन बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया के अंदर 25 से ज्यादा लैंग्वेज है, तो केवल एक लैंग्वेज जो कंबाइन लोगों को समझ आती है और लोग बोलते हैं वो है इंग्लिश। तो ये 2 दिन के स्टेनिस्लावस्की पूरा मेन्यू कार्ड है किसी रेस्टोरेंट का, जिसमें बटर चिकन भी है, फलाना भी है, ढिमका भी है, ये भी है, वो भी है। अब हर आदमी ने अपना अपना उस मेन्यू कार्ड में से एक डिश ऑर्डर किया, उसकी डिटेल ढूंढी, कुछ और ऐड किया, और कुछ उसमें से बना दिया। तो जो
ट्री है जहां से निकली है पूरी एक्टिंग की दुनिया, वो स्टेनिस्लावस्की है। और बाकी सब लोग आए, उन्होंने कुछ अपना चेंज किया, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, और उसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड किया। अब ये डिपेंड करता है एक्टर पे कि उसको क्या चाहिए। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको अगर मटर पनीर पसंद है तो आप मटर पनीर सब्जी ऑर्डर देते हैं, और अगर आपको बैंगन का भरता पसंद है तो आप बैंगन का भरता। वो आप वेटर से पूछोगे इसमें से बेटर कौन सा है, तो वो बोलेगा सभी बेटर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। एक बहुत बड़ा एक्टर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट है, जिन्होंने रिपेटरी में काम किया है बहुत, उसके बाद एज ए विलन उनको लोग जानते हैं। मैं उनका लेक्चर सुन रहा था भारत रंग महोत्सव के अंदर। उन्होंने जब वो बताया कि मैं कैसे उस फिल्म के लिए सोच रहा था कि कैसे कैरेक्टर को डिवाइस करूं, तो उसको याद आया अपने बचपन में गांव के अंदर एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर होता था। वहां से उसने वो एक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी उसको इम्बाइब किया एंड ही एडिड दैट इनटू हिज कैरेक्टर। तो वो उनके लिए वो टेक्निक कामयाब रही, हो सकता है औरों के लिए ना रहे। तो हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है। अब ये इट इज एज सिंपल एज ए क्वेश्चन कि भाई कौन सा रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, प्योर है और उसके अंदर शेड्स हैं। वो आपका जो टेस्ट है उसके हिसाब से आप, और जब आप एग्जामिनेशन में लिखने जाएंगे तो वहां पे मार्क्स होते हैं, लाइन होती है, उस आदमी ने क्या बोला आपको केवल वो लिखना है, ना कि आप क्या सोच रहे हैं। तो सर हाँ जी बोलिए। सर एफटीआई में एक्स्ट्रा शीट मिलती है क्या? एक्स्ट्रा शीट भूल जाओ, जो शीट मिली है उसी को लिख लो, उतना ही काफी होता नहीं बस ऐसी में है। नहीं मिलती, नहीं मिलती। जितना केस दिया होता है उसमें ही लोग नहीं लिख पाते। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सिद्धांत। तो आई Ma'am, थिंक बोलिए। okay. So, ma'am, Stella Adler talks about imagination. So, I want you to tell us few exercises like how to cultivate the imagination and how to go in the realm of the imagination and come out of it with a product. Because for an actor, उसको ये नहीं होता है कि वो जो कैरेक्टर मिलता है वो सिमिलर या सेम उसकी तरह ही हो. It will be very different from what a person he is. So, in order to do justice for the character, if we use any of these methods, so imagination, so far what I have learned, imagination plays a very important role. Let it be Stanislavski, let it be any other master. They talk about imagination. They don't deny it, or they are not against imagination. So how do we get into the realm, and how do we exercise and how do we practice it? Okay, let me tell you one or two exercises, ठीक है, which might answer your question, or at least put one path towards your initiative towards gaining a character. ठीक है. First of all, as we spoke, observation is very important. पहले तो आप तैयार हो जाओ किसी भी imagination को achieve करने के लिए. All right. That observation is very important. One observation technique that I can tell you कि first of all observe yourself कि एक given situation में what is your behavior, and an actor's mind is always observing. It is an observant mind. All right. The actor really catches everything. ठीक है कि मैं अभी इसीलिए ना कई बार कुछ चीजें लाइफ कभी कभी थोड़ी मैकेनिकल भी हो जाती है एक्टर के लिए कि अभी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, जेन्युइनली रो रही हूँ, अचानक से मेरा एक्टर का दिमाग शुरू हो जाके अभी तेरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ये जो अभी रो रही है अभी तेरा हाथ कैसे, तो उस लेवल पे भी जाता है कि यू ऑब्जर्व, यू नो योरसेल्फ फर्स्ट. सेकेंडली ऑब्जर्विंग अदर्स. एक सिचुएशन है जहां पे दो लोग झगड़ रहे हैं एंड व्हाट आर द बिहेवियरल पैटर्न. सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप अपना इंस्ट्रूमेंट रेडी कर सको किसी भी इमेजिनेटरी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए. Stella Adler talks about another thing, and that is characterization. ये जो एक इमेजिनेटरी कैरेक्टर कैसा लगेगा, वो किस तरीके से क्या करता है, पहले तो आप कैरेक्टराइजेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च कि ये कहाँ से है, क्या किस भाषा में बात करते हैं, कहाँ से है, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, घर में ऐसा ऐसा देखा, तो उस चीज के बेसिस पे लाइक फॉर एग्जांपल
Suppose I am a character. All right. What I know about myself is I use a lot of gestures. Why do I use a lot of gestures? Because my background is from classical. मेरा classical dance का बहुत strong बचपन से background रह चुका है. इस वजह से my face moves a lot, my facial muscles moves a lot, my hand gestures moves a lot. Now if you have to do a character like me, first you have to know कि मेरा background क्या रहा है, and on the basis of my background you will build up my behavioral pattern, my body language. ठीक है? And yes, it is really important to imagine how you look also. आपका एक अपना चेहरा है, ठीक है? This little thing I'm little bit borrowing from Chekhovian technique. All right, ये थोड़ा Chekhovian technique से मैं थोड़ा सा borrow कर रही हूँ ये चीज कि आप सिद्धांत है, आपको हैमलेट प्ले करना है. हैमलेट तो सिद्धांत जैसा नहीं दिखता था, ठीक है? सिद्धांत सिद्धांत है, वो एक रियल कैरेक्टर है. हैमलेट पता नहीं कैसा, शायद उसकी नाक थोड़ी सी और लंबी थी, ठीक है? आंखें शायद थोड़े से और बड़े थे, शायद उसके बियर्ड कम आते थे, आपसे कम थे शायद. नाउ why it is all the more important not to look into the mirror while you are talking, while you are rehearsing your lines, so that अपनी छवि हटा के आप वो वाली छवि अपने दिमाग में बिठा सको कि ये जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ना, इसकी हाइट इतनी है, नाक ऐसी है, and really convince yourself, have this conviction in your mind. After a point of time you will actually start believing कि हाँ ऐसा ही है, इसकी नाक लंबी है. आप जब वो चीज जब आप में ये फीलिंग जब आप में जेन्युइनली आएगी ना कि मैं 6 फुट का, मैं 7 फुट का हूँ यार, मैं 7 फुट का हूँ, बहुत चौड़ा हूँ, बहुत एरिया घिरता है मेरे से, you will this imagination, when you will actually start imposing it, it will really change your body language. And an actor is no less than a tantric, okay, shaman. Why? जो एक्टर दिखाता है ना कन्विक्शन के साथ, ऑडियंस वही देखती है. You just need to have that faith, you just need to have that conviction. Alright, really ऑडियंस को वही दिखता है जो एक्टर दिखाता है. आप में अगर कन्विक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है ऑडियंस को भी कि कुछ गड़बड़ लग रहा, नहीं है, मजा नहीं आया. Alright, so and it is so psychologically connected. ठीक है? Siddhant, did I answer you? Could I answer you? Yeah, ma'am. Like, not completely. Like, I'll do some research on it since we have Okay. less time. I'll just go Yeah. and research on it because I find it very interesting. Like, drawing things from your imagination and putting it in a character and doing it live and bringing it to life is really very fascinating. It has so much to do with your practice, with your own practice. Yeah. कि आप ये एक एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है? कि आपने ये जो एक इमेजिनेशन है, ये आपके अंदर चैनलाइज्ड होके इसका फ्रूट, जो इसका जो आउटकम निकला है, वो कैसा फील कराता है, क्या होता है एक्चुअली. दिस हैज सो मच टू डू विथ एक्सप्लोरिंग इट योरसेल्फ एंड एक्चुअली डूइंग इट. Yeah, rather ma'am. than बात करके हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, बट वो जो बिलीव करना, इस चीज को सही में समझना, दिस यू कैन हैव ओनली व्हेन यू डू इट. Yeah, ma'am. Sure. ऑल राइट. एंड ये Yeah. जो थोड़ी सी चीजें कहीं की, थोड़ा इमेजिन करो कि हाँ है, थोड़ा कन्विक्शन डालो, थोड़ा इस थॉट में रहो थोड़े टाइम पे, यू विल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इन इट. ये जो कभी कभी we all have lied in our lives, ठीक है? हमने झूठ बोला है कि हाँ पाँव में लग गई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्लास में आके, तो इसको और सच बनाने के लिए हम लिम्प करने लग जाते हैं. I don't know if it has happened to you, but when I had done it, when I was in school, when I had started limping, after a point of time I could actually feel the pain. Not Like ये really, मेरे साथ हुआ. not reality, but Yeah. I know how it would pain if I Yeah. actually had hurt my leg. This happened. So one of my friend used to stammer a lot. So we, as when he used to not be with us, we used to act as how he used to stammer. So after a certain period of time, मेरे अंदर ऐसे बैठ गया कि even I started to stammer. हाँ, ये थोड़ा सा आपके बॉडी मेमोरी में बैठ गया था. अच्छा. All right.
Okay, so Body that is the memory, thing. This is that is another thing. Yeah, that is another okay. thing. ये जो pain feel करना, ये pain, ये feel है. This is something you can't see, but this is something you can only feel. And if you want to make it absent, it will not be there. Yeah, You yeah, can yeah, yeah. erase it. But if you Okay, are actually understood. stammering, if you have Mhm, actually started to stammer without putting any effort, it means ये mhm. आपके body memory में बैठ गया था. Body memory is again another thing. It has a lot to do with biomechanics. Okay, Biomechanics okay. is by Michael Chekhov. Chekhov. Michael Chekhov, nahi, Grotowski, Grotowski. and also Okay. Michael Chekhov, and also partly Michael Chekhov, but It was, Grotowski. wasn't it Meyerhold's biomechanics? Meyerhold's biomechanics. ये इस टर्म को हाँ उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली पोर्ट्रे किया था, लेकिन ये जो चीज आप रिपीटेडली करते 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 कब ये आपका अपना बन जाता है. सो ये क्योंकि ग्रोटोव्स्की वर्क्स अ लॉट विद द बॉडी, फिजिकल थिएटर, ऑलराइट, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता था. तो सो या Yes, thank you, ma'am. ऑलराइट. Thank you very much, Megha. It was nice to have you here, and we will connect again after a point, and you can sign it off. And thank you very much. Thank you everyone, all the best. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. So Thank you. we are launching a poll now. You could mark your attendance. Many people are still there, at least 15, and 4 has already left because they have something else to do probably. It's all right, and that's it. सर वो Caravaggio वाली book कौन सी है? There's a painter called Caravaggio. हाँ Caravaggio. So I was like, what's the book? There are many books over there on the Caravaggio, and this is one book. It is a publication called Taschen. It's an American publication, and you can easily find this publication over there on the net. Yeah. So thank you very much, and that's it. Here we go. And